Hello, dear friends. Welcome to our education. These are the question of English language, and these are also very compulsory because they come in all the examination of PRT for all the schools. Now let us start. First question is: my sister-in-laws who live in Bangalore have come to stay with us. Now you have to find error on which part, and the answer is A. बिकॉज माई सिस्टर इन लॉज नहीं होता है. अगर आपकी एक सिस्टर है तो उसके लिए एक सिस्टर इन लॉ आएगा, बट अगर आपकी मोर देन एक सिस्टर है तो उसके लिए आप एस, सिस्टर के आगे एस लगा दोगे, सिस्टर्स इन लॉ आएगा, नॉट द सिस्टर इन लॉज. तो एस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आना चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट ही गलत है. अ वुमेन हु ऑलवेज connives on the mistake of her children is their worst enemy. Explanation आंसर है आपका बी. रिप्लेस ऑन विथ एट. connives at the mistake. As the celebration was going, we noticed Mrs. Sharma fall back in her chair, gasping for breath. Answer is A. As the celebration was going on. जब भी हम going लगाते हैं तो going के साथ on हमेशा आता है, तो ये एक phrase है going on. तो आंसर आपका जो है ये है फर्स्ट पार्ट में आपका मिस्टेक है. ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय एयर इज चीपर देन लैंड. एड बाय बिफोर लैंड. सो एयर इज चीपर देन लैंड, तो देन बाय लैंड आना चाहिए इसमें, ये वाले पोर्शन में मिस्टेक है. शी, यू एंड आई विल मैनेज द वर्क फ्लो टुगेदर, और द करेक्ट फॉर्म इज यू, शी एंड आई. सबसे पहले यू आएगा, उसके बाद शी आएगा और उसके बाद आई आएगा, तो इस वाले पोर्शन में मिस्टेक है. Choose the option that completes the sentence most meaningfully and appropriately. They recognize that problems that were too big to crack in the past can now be solved precisely because of digitization, algorithms and sensors. So the correct answer is digitization. As per the meaning of the sentence, the word digitization, which means process of converting information into digital form, fits in the blank. According to the last population dash, globally India has the largest illiterate population, और आंसर है सी, सेंसस. अकॉर्डिंग टू द लास्ट पॉपुलेशन सेंसस. सेंसस का मतलब जब आप पॉपुलेशन को काउंट करते हो और ये हर 10 साल में होता है तो उसको हम सेंसस बोलते हैं. A transparent regulatory environment, clarity on applicability of existing tax laws, less dash by state and minimum restriction on regulation are the key takeaways from the startup launch. आंसर है इंटरफ्रेंस. जब आप किसी को स्टार्टअप के लिए, जैसे आजकल मोदी जी बोल रहे हैं स्टार्टअप करो, स्टार्टअप करो. स्टार्टअप का मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट करो आप, और उसके लिए फंडिंग वगैरह और मोटिवेशन वगैरह और जितना आइडियाज़ होते हैं वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी. तो उसके लिए स्टेट का यानी अपने कंट्री का एंटरप्रेन्योर के ऊपर कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए, दखलंदाजी कम होनी चाहिए. अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, popularly known as LLP, combines the advantages of both the company and partnership into a single form of organization and offers a dash structure that is hybrid structure. As per the meaning of the sentence, the word hybrid means a thing made by combining two different elements, fits in the blank. The e-commerce market has grown exponentially and evolved as a leading source of the much needed foreign dash required by our economy. Foreign investment. ई-कॉमर्स का मतलब जो आपके अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, अलीबाबा, जो शॉपिंग साइट्स हैं होती हैं ऑनलाइन, उनको ई-कॉमर्स बोलते हैं. तो इनमें फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है.
नेक्स्ट आपको choose the correct phrase from the option given below to replace the highlighted phrase. If you do not finish your presentation, the manager is going to give you a large time. अब ये जो large time ये highlighted है, इसका क्या एकदम बढ़िया वाला जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, सिनोनिम समझ लो इसका, वो क्या होगा? दैट इज़ सी, हार्ड टाइम इज़ गोइंग टू गिव यू अ हार्ड टाइम. तुम्हारे लिए मुश्किल खड़े होने वाली है. वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट अंकित, सो लेट्स कॉल इट अ ईयर. इसका मतलब होता है कॉल इट अ डे. चलो आज एक दिन के लिए हम लेट कर लेते हैं बिकॉज हमको आगे बढ़ना है, तो अंकित के बिना आगे हम नहीं बढ़ेंगे. माई पेरेंट्स कॉल मी एवरी देन एंड नाउ टू सी इफ आई एम डूइंग वेल. नाउ एंड देन, इसका आंसर होगा सही वाला, एवरी नाउ एंड देन. ही विल रियलाइज दैट ही इज़ डूइंग समथिंग बैड क्विकर और लेटर. इसका सही होगा सूनर और लेटर. अभी या बाद में वो कुछ न कुछ बुरा करने वाला है. व्हाट्स द मैटर, हैज़ द कैट गॉट योर माउथ. आंसर होगा हैज़ द कैट गॉट योर टंग. ये पैसेज है और इस पैसेज के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं. तो ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज तो सेम नहीं रहते हैं. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पॉज द वीडियो, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस. पैसेज वाले क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि इनसे भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं. तो ये देखिए बहुत सारे पैसेजेस हैं, इनको आप कभी भी पॉज करके वीडियो को इनके आंसर्स अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो इतने सारे पैसेजेस हैं ये तो सारे. ओके, नाउ इसमें आपको सिनोनिम ढूंढना है. सिनोनिम का मतलब होता है आपका पर्यायवाची शब्द अथवा सिमिलर वर्ड्स. इनएब्रिएट, इसका मतलब होता है ड्रंकन. फेन, फेन का मतलब है प्रिटेंड, दिखावा करना. मेलिफ्लस, मेलिफ्लस का मतलब होता है हार्मोनिक, सबसे मिलने जुलने वाला. इम्पैकेबल, इम्पैकेबल का मतलब इम्परफेक्ट. इम वर्ड जिसके भी आगे लग जाता है वो आपको नेगेटिव ही बना देता है. तो जो परफेक्ट नहीं है वो इम्पैकेबल है. एंटाइस का मतलब है रेपल, पछतावा करना. इंटरिम का मतलब है फिनिश्ड, किसी चीज़ को पूर्ण कर लेना. 3 hours. In the following question, each sentence has an underlined part that can be improved by replacing the part with one among the 4 options given below. 3 hours have elapsed since she had fallen asleep. Answer है fell. 3 hours have elapsed since she fell asleep. The principal asked, why are you late? Answer है why you are late. जबकि प्रिंसिपल को पूछना चाहिए why are you late. Many a man have died of swine flu. आंसर है इसका has died of swine flu. देखिए जब एक सिंगल होता है पर्सन, प्रोनाउन अगर सिंगल होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी सिंगल ही रहता है, हैज़ आएगा. हैव बहुत सारे लोगों के लिए वी यूज़ हैव, बट अगर सिंगल पर्सन है तो उसके लिए वी विल यूज़ हैज़. तो इसका आंसर होना चाहिए हैज़ डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू. मैनी अ मैन हैज़ डाइड ऑफ स्वाइन फ्लू. माई हस्बैंड इज़ इल सिंस 3 months. आंसर है हैज़ बीन एलिंग फॉर. माई हस्बैंड हैज़ बीन एलिंग फॉर 3 months. एलिंग मतलब बीमार चल रहे हैं 3 months से. जब भी कोई चीज़ पास्ट से चल रही होती है और प्रेजेंट तक भी कंटिन्यू होती है तब हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं, जिसमें हैज़ या हैव के साथ हम बीन को ऐड कर देते हैं, BEEN. इसका मतलब जो कर्म है, जो एक्शन है वो पास्ट से चलता हुआ अभी तक प्रेजेंट में आ गया है, बट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है.
ही इज़ टू कैनी टू सी थ्रू हर ट्रिक्स। आंसर है देयर इज़ नो ग्रामेटिकल, आंसर है देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस। इट मीन ये पूरा सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। आंसर है सी, ऑन। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, फॉर हिज सक्सेस नहीं, ऑन हिज सक्सेस। दे विल बी कमिंग टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। इजंट इट, इजंट इट नहीं, इसका आंसर आएगा वॉन्ट दे। जब हम इसका ही नेगेटिव इसके पीछे बनाते हैं या उसके आगे बनाते हैं तो दो चीज़ें बिल्कुल अपोजिट होती हैं, है ना। तो अगर ये विल भी है तो विल भी का अपोजिट होगा वॉन्ट बी। सो द आंसर इज वॉन्ट बी या वॉन्ट दे, क्योंकि दे है, इजंट इट नहीं होगा। जो यहाँ पे लगा है हेल्पिंग वर्ब उसी से हम नेगेटिव बनाएंगे। वॉन्ट कितने आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसके पीछे हम वॉन्ट दे लगाएंगे। ही हैड नो डिफ़िकल्टी टू सेटल डाउन टू हिज न्यू लाइफ इन द विलेज। आंसर है इन सेटलिंग डाउन। ही हैड नो डिफ़िकल्टी इन सेटलिंग डाउन। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 7 days। इसका आंसर है डी, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। द आंसर इज़ परफेक्टली ऑल राइट। द मर्डरर वॉज ऑर्डर टू बी हंग टू डेथ। आंसर है टू बी हैंग्ड टिल डेथ। So please do like our channel, that is Wow Education, and like and share and subscribe as well our channel and share the videos and do comment. Thank you so much.